today to talk about India International Science Festival 2020, which is going to be held from December 22 to December 25, 2020. The theme of this year's India International Science Festival is Science for Self-Reliant India and Global Welfare. Atmanirbhar Bharataye Vishwa Kalyanaye Che Vigyanam. As the title itself indicates, that this year our focus is to highlight science and technology, innovations and interventions made by India to become self-reliant and also project at the international level. India International Science Festival was conceived in 2015, and it has traversed a beautiful journey from Delhi in 2015 to Kolkata 2019. This year, the situations are different. Due to COVID, we cannot have an offline conference. Therefore, our Honorable Minister, Science and Technology, Dr. Harshvardhan ji, gave a beautiful idea that we should have this online IISF in a new mode and a new avatar, which is online conference. And he has given us a vision to convert this challenge into opportunity and to connect more and more people in number of connecting people from thousands to lakhs. So keeping this in mind, we have planned ISF 2020. And this year, the responsibility of organizing ISF has been given to CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, and our institute, National Institute of Science, Technology and Development Studies, has been given the responsibility to organize it. So we are very proud and very happy to do it. A brief summary of 6th ISF is, the theme is Science for Self-Reliant India and Global Welfare. The date is December 22 to 25. It's going to be organized on virtual space, and one can register by logging in www.scienceindiafest.org. I'm very pleased to inform that last year there were 28 events under which various programs were organized, but this year the number has increased from 28 to 41. 13 new events have been added. I will be telling you in detail later on. The best part of ISF is that it is not limited to a particular section of people. This whole concept of ISF is to connect masses with the academicians, with the scientists, with the technocrats. Therefore, the participants can be school students, researchers, teachers, national and international scientists, technocrats, industrialists, innovators, entrepreneurs, craftsmen, artisans, artists, social service organizations, farmers, health sector, specially abled people, exhibitors, diplomats, and policymakers, and many others. The vision of ISF 2020 is promotion of Atmanirbhar Bharat and global welfare through science, technology, and innovation. And the objectives are to promote and build scientific temper among the masses and the young children, to catalyze and trigger relationship between science and society, leading to the development of new frontiers of growth, both scientifically and economically, to strengthen nation and to achieve inclusive and sustainable growth in the coming future, to provide a platform for recognizing contribution of science and technology in global development. ISF 2020 has been planned across 9 verticals. These verticals are inclusive development, new frontiers, sustainable development, science for masses, national and international linkages, industry and MSME, science for agriculture and rural development, science and humanities, science for students. Under each vertical, there are more than 3 events, and each event is unique
in its nature. For example, in inclusive development, we have Women Scientists and Entrepreneurs Conclave, Conclave on Assistive Technologies, and Divyangjan, National Science Organization and institutions meet. In New Frontiers, we have Nav Bharat Nirman, Building of New India, New Age Technology Show, face to face with new frontiers in science. In sustainable development, this is a new vertical which has been created, and you can see here the number of events which are blue in color are being projected for the first time. They are biodiversity, clean air, energy, habitat, rural and urban both, waste and sanitation, water. Two events are from the previous ISS, that is Health Research Conclave and Wellness Conclave. Science for masses, to engage a large number of people from the society, we have International Science Film Festival of India, Science and Technology Media Conclave, Vigyan Yatra, and outreach programs. National and international linkages, Global India Scientists and Technocrats meet, bringing our Indian diaspora to the country's problem and solutions. International Science Literature Festival, Vigyanika, Overseas Ministers and Diplomat Conclave, and a new event, Science Diplomacy, that has been incorporated, State S&T Ministers Conclave. For industry and MSME, Industry Academia Conclave, Mega Science Technology and Industry Expo, National Startup Conclave, and a new feature, Games and Toys. And I'm very pleased to share with you that the maximum number of registrations has taken place under this theme. More than 3,000 participants have registered for this single event, Games and Toys. And this is the event which our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, highlighted in one of the Man Ki Baat, कि हमारे भारतीय खिलौनों का एक नया बाजार विकसित होना चाहिए और उन खिलौनों की विज्ञान से क्या जुड़ाव हो सकता है वो हम इसमें हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे. साइंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मीट, एग्रीटेक, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्टिसन मीट एंड एक्सपो. Agritech is the new event, so how to double the income of farmers and how the technology which is being developed in our labs can be extended to our farmers. So this theme will highlight this particular concept. Science and humanities, this vertical is again a new vertical, history of Indian science, science and philosophy, science and performing arts. This theme, this vertical, is with our Indian ethos, because Indian ethos have been to look at the science holistically. We do not differentiate between physical sciences, social sciences, spiritual sciences. For us, science is unique, comprehensive, so that's why history, philosophy, and arts have been included. Science for students, large number of school students have the opportunity to participate in various events. One is Students Engineering Model Competition, National Science Teachers Congress, Northeast Students Conclave, Science Education in India, Student Science Village, Young Science Conference. Science Education in India is a new event, and this has been kept in ISF 2020, keeping in mind that a new education policy is coming in. So we must discuss several aspects of teaching science in India. We will be attempting for Guinness World Record. We have always been. This time, 5 events have been planned. One is the whole event itself, ISF 2020 Virtual Science Festival. This will be competing for Guinness World Record. The second one is most people assembling, making sundial. The third one is most people washing hands simultaneously, and most people applying protective masks and taking an oath simultaneously. These two have been chosen keeping in mind
the pandemic situation which is prevailing, how we can sensitize the society the importance of hand hygiene and wearing mask. And the last one, most viewers of a nutrition lesson live stream on a bespoke platform. Eat healthy food and how it affects our health. So in the last slide, I would like to highlight some points. More than 1 lakh people have been registered with us. Event-wise registration is 72,000. General participants are 58,000. To make this program, several outreach programs have been carried out. One is Vigyan Yatra. It started from 4 corners of India, north, east, south, west, and today it will be culminating in Delhi. So 130 stations it has covered the whole yatra. Curtain raisers, more than 85 curtain raisers have been organized by CSIR labs, DST labs, ICMR labs, MOES labs, and DBT labs. And many more people have participated in this curtain raiser program enthusiastically. And outreach programs, more than 50 programs have been done. So I will request all of you to propagate ISF 2020. It's a special platform where all people of the society, whether they are school students, college students, university students, professors, or those who have not gone for the formal education. So everybody has scope to come and celebrate the festivity of science. With these few words, I would like to thank you all for giving me time and patience hearing. Thank you so very much. सभी महानुभाव, प्रचार माध्यमों के द्वारा यहाँ पर पधारे हुए सारे बंधु भगिनी, सभी को मेरा सादर अभिवादन। 2015 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की यात्रा प्रारंभ हुई और आदरणीय मंत्री जी ने ये उचित समझा कि विज्ञान भारती भी इस पूरे कार्यक्रम की योजना में सम्मिलित हो। एक नॉलेज पार्टनर इस नाते इस कार्यक्रम के साथ 2015 से विज्ञान भारती जुड़ी है। विज्ञान भारती अपने देश में एक कार्यरत विज्ञान आंदोलन है जो स्वदेशी भाव से प्रेरित है। स्वाभाविक है, स्वदेशी यानी आत्मविश्वास, और अपने देश में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास होता है उसके द्वारा समाज के अंदर आत्मविश्वास जगे, जिसके आधार पर आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकती है। इस दिशा में विज्ञान भारती विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है। सामान्यतः इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में 2 कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका विज्ञान भारती की रहती है। इस कार्यक्रम का एक बड़ा आकर्षण का एक कार्यक्रम है मेगा साइंस एक्सपो। अपने देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में, प्रयोगशालाओं में विश्वास लेकर वहाँ से अपने अपने घर में लौटते हैं। अपने देश में विज्ञान के क्षेत्र के द्वारा आत्मविश्वास जगाने का एक बहुत बड़ा काम इस मेगा साइंस एक्सपो के द्वारा होता है। और एक बड़ा कार्य विज्ञान भारती के द्वारा होता है, वो यानी इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना। जैसे इस साल इस प्रतिबंधित इस प्रकार के परिस्थिति में भी विज्ञान भारती ने सोचा कि विज्ञान यात्रा का जो कार्यक्रम है वो आभासी वर्चुअल पद्धति से हम करें, और हमने देश के 4 कोनों से यात्रा निकाली और लगभग 228 कार्यक्रम इस यात्राओं के दौरान कर्टन रेजर्स, आउटरीच प्रोग्राम्स ऐसे मिलाकर हम इस साल कर पाए। और अब तक एक बहुत अच्छी संख्या में लोगों तक इन कार्यक्रमों के द्वारा भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को पहुंचाने का कार्य किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, जिसके कारण इस समय इस वर्ष के इस परिस्थिति में भी ये जो वर्चुअल मीडिया के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, ऐसा अनुभव है। विज्ञान भारती का एक बहुत ही आनंद का विषय है कि आदरणीय मंत्री जी ने विज्ञान भारती को उचित समझा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में विज्ञान भारती का सहभाग हो। धन्यवाद। Honorable Minister of Science and Technology, Earth Sciences,
Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan ji, all my senior colleagues from the government on dais, Dr. Ranjana Agarwal, Shri Jain Sahasrabudhe ji, and all the friends and colleagues from media. It's a great pleasure to invite all of you to the 6th leg of India International Science Festival. As all of you heard, this was an idea proposed by Honorable Minister Dr. Harshvardhan ji to us in 2015 that we should celebrate achievements of science in form of a large festival. This year particularly, we have had a huge challenge in organizing the festival, but as all of you are aware, whenever in history of independent India, there have been challenges posed to the scientists and technologists, whether it be during the Green Revolution to make plenty of food available, whether it be during White Revolution to transport and store milk in different places, whether it be during 1970s and 80s when technologies were being denied to India, especially in defense and space sector, or in the current era of globalization, the scientists and technologists have always risen to the occasion and converted those challenges into opportunities. And keeping the same sentiments, this year's Science Festival is being organized. We are converting this particular challenge into an opportunity to showcase that we can organize one of the largest gathering of scientists, students, science lovers in society online, in the online platform. And we have been blessed with the mentorship by Dr. Harshvardhan ji in this particular respect. Under his guidance, we are all working to make this a grand success. Welcome to all of you once again. Thank you. Thank you very much, sir. Now I invite Honorable Minister to tell us more about his dream project of organizing Science Festival and his vision about taking science in India to new heights. Sir. आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए सभी हमारे पत्रकार भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आपका बहुत आभार भी हम सब लोग प्रकट करते हैं क्योंकि देश में 2020 का वर्ष विषम परिस्थितियों का वर्ष रहा है और ऐसी परिस्थितियों में भी आप सबका इस तरह के कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर फिज़िकली शामिल होना हम सब के लिए एकदम उत्साहवर्धक है। मेरे सभी वरिष्ठ साइंस डिपार्टमेंट के साथी मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। अभी CSIR निस्टेट्स की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना अग्रवाल ने आपको एक ओवरव्यू जो है जिस कार्यक्रम के संदर्भ में आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। संक्षेप में अगर मैं अपनी बात को कहूँ तो 2014 के अंत में नवंबर के महीने में मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से ये एक जिम्मेदारी मिली थी और 6 वर्ष के बाद मैं कम से कम इतना बड़े संतोष और सौभाग्य जैसी भावना के साथ कहता हूँ कि ये शायद मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था और जिस प्रकार का एक्सपोजर मुझे साइंस के साथ वैज्ञानिकों के साथ 6 साल में प्राप्त करने का मौका मिला और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रतिभा को कैसे हम देश के दुनिया के लोगों की जो अनसुलझी समस्याओं के समाधान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पोटेंशियल को देखने का, समझने का और उस पोटेंशियल को एक प्रकार से क्रियान्वित होते हुए
जनता के देश के लाभ के लिए परिवर्तित होते हुए मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए हमेशा मेरा ये मत रहा है कि जब तक स्वास्थ्य एक बड़ा जन आंदोलन नहीं बनता, तब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो लोगों के हित की बातें हैं, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना कठिन काम है। लेकिन विज्ञान मंत्रालय में आने के बाद 2014 में कुछ ही समय के बाद जब नज़दीक से लेबॉर्ट्रीज़ में जाकर वैज्ञानिकों को काम करते हुए देखा और ये देखा कि उन्होंने असाधारण काम किए हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर भारत के अंदर असाधारण उपलब्धियां ना हासिल हुई हों, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि ना तो इन उपलब्धियों के बारे में, ना ही इन कामों के बारे में लोगों को कोई विशेष जानकारी है, और ना ही हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट या एस्पायरिंग जो साइंटिस्ट हैं, हमारा जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी शायद विज्ञान के प्रति उस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। और उसी सब बातों को देखते देखते, समझते समझते अगले कुछ महीनों में ये विचार मन में आया कि विज्ञान को भी एक बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए। और विज्ञान को जन आंदोलन बनने के लिए ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसकी सबसे पहले कल्पना और सोच भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय ने, जो हमारे विचार परिवार के साथ वैज्ञानिकों की जुड़ी हुई संस्था है विज्ञान भारती, जिसके बारे में अभी उनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जयंत सहस्रबुद्धे जी ने हमारे सामने संक्षेप में बात रखी है कि एक स्वदेशी साइंस मूवमेंट जो भारत में चलता था ऐसे वैज्ञानिकों के माध्यम से, ऐसे विज्ञान भारती के लोग और भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, जिसके सभी कंपोनेंट्स, जिसके सभी वरिष्ठ सेक्रेटरी यहाँ मेरे दाएं बाएं सब लोग बैठे हैं, तो उस नाते ये 2015 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की कल्पना की गई थी। और इसके माध्यम से विज्ञान के सारे संबंधित लोग देश में, विदेश में, हर उम्र के, हर अनुभव के, हर लेबॉर्ट्री के, हर आयाम से जुड़े हुए, उनको कैसे जनता के साथ जोड़ना है और कैसे आने वाले हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनमें साइंस के प्रति हमें अभिरुचि पैदा करनी है, इस सोच के साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ था। 15 के अंदर दिल्ली के IIT में, 16 के अंदर फिर इसी तरह से नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री में, और इसके बाद फिर हमने देखा कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने चेन्नई में किया, ये कार्यक्रम हम लोगों ने लखनऊ में किया, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कलकत्ता में किया। और इन 5 पिछले साइंस फेस्टिवल्स में सौभाग्य से देश की सभी बड़ी बड़ी महान हस्तियों को, खाली राजनीतिक क्षेत्र के नहीं अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले, एकेडमिक क्षेत्र के, ये सारे लोग, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के कैबिनेट के बड़े बड़े सभी मंत्रीगण, सारे देश भर के अंदर गवर्नर्स, इसी तरह से सारे जो हमारे कई पड़ोस के और दूसरे विदेशों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स, और विदेशों के अंदर काम करने वाले हमारे इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिक, ये सब लोगों ने उसके अंदर भाग लिया। देश के अंदर जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स थे, उनके जो एडॉप्टेड विलेजेस थे, वहाँ से बच्चों को उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती थी।
और हज़ारों बच्चे इस प्रकार के उन्होंने पिछले हमारे साइंस फेस्टिवल्स में भाग लिया, इनोवेटर्स ने भाग लिया। हमारे जो साइंस के साथ जुड़े हुए और बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, कोई साइंस की फिल्म्स हो सकती हैं, कोई साइंस के साथ जुड़ा हुआ आर्ट का विषय हो सकता है। और जैसा आपने अभी आज भी देखा कि लगातार हम लोग साइंस के माध्यम से जो देश की जो मेजॉरिटी है, जो गांव में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, जो गांव का जो हमारा किसान है और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा पक्ष है, इसको हम कैसे साइंस के माध्यम से सुदृढ़ करें, ये प्रक्रिया भी धीरे धीरे करके हम लोगों ने शुरू की। और इसको इस बार और ज़्यादा बड़ा बूस्ट जो है ये मिल रहा है। इस बार 2020 का जो वर्ष है, ये जहाँ एक तरफ कोविड के कारण ये हम सब के लिए, हम सब पूरा 1 वर्ष इस बात के साक्षी हैं, जो कुछ सबने देखा है, समझा है, सहन किया है। कितने सारे देश के अंदर लोग उन्होंने प्राण गंवाए, कितने सारे कोरोना वॉरियर्स की जो है इसके अंदर हमारे प्राण की रक्षा करते हुए शहादत हुई, ये सब हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर मैं 2020 के वर्ष को ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ, या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 in spite of COVID and everything, not only in India but all across the world, तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। साइंस की जो ताकत है, साइंस का जो पोटेंशियल है, साइंस के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो भाव पैदा होने की आवश्यकता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आँखों के सामने 2020 में होते हुए देखा है। और इसलिए 2020 में यद्यपि फिज़िकली जहाँ हमारे साइंस फेस्टिवल्स के अंदर अगर मैं स्मरण करूँ अपने लखनऊ के फेस्टिवल को या कलकत्ता के फेस्टिवल्स को, तो लाखों की तादाद में हमारे जो पहला जो IIT दिल्ली में फेस्टिवल हुआ था, उसमें शायद हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते थे 3-4 लाख लोगों का फुटफॉल था। लेकिन हमारा लखनऊ का जो फेस्टिवल हुआ था, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति जी भी गए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी जी, बहुत लोग वहाँ रहे, उसमें 10 लाख से ज़्यादा का फुटफॉल था। इसी प्रकार से पिछले वर्ष जब कलकत्ता के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको एड्रेस किया था बच्चों को, तो कई हज़ार बच्चे और सारे लोग उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था। तो इस श्रृंखला को हम लोग कोविड के बावजूद किसी भी कारण से इसको टूटने नहीं देना चाहते थे और सबने मिलकर विचार विमर्श किया। 2020 में भी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा और वो शुरुआत भी उसकी एक महत्वपूर्ण दिन में होगी और उसका जो अंत है वो भी एक महत्वपूर्ण दिन में होगा। और इसलिए कल 22 दिसंबर, जो कि देश के इतने बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रामानुजन साहब की जयंती है, उस दिन ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और 25 दिसंबर जो हमारे सबके हृदय के साथ इतने जुड़े हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, उस दिन हमारा ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 ये समाप्त होगा। और ये दोनों दिन के बीच में कई किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी। 41 एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से अभी यहाँ पर कुछ चर्चा हुई है, उसके कुछ वर्टिकल्स के बारे में चर्चा हुई है। समय की मर्यादा एक एक एक्टिविटी को विस्तार से यहाँ घोषित करने की, जानकारी देने की परमिशन नहीं देता। लेकिन जैसे आपने देखा कि इस परिस्थिति में भी उसके लिए कर्टन रेजर्स सारे देश के अंदर हम लोगों ने पिछले सालों में भी किए, इस बार भी लगभग 85 कर्टन रेजर्स। इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं IIT कानपुर के कर्टन रेजर को जो है उसके अंदर शामिल होकर यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम के अंदर आया हूँ और सारे देश भर में
एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, लेबॉर्ट्रीज़, वो सब जगह पे, और फिर आउटरीच के कार्यक्रमों के बारे में अभी जयंत सहस्त्र बुद्धे जी ने बताया, साइंस की यात्रा के बारे में हमें जो रंजना जी ने बताया, ये सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें आने वाले समय के अंदर जो 5-6 दिन कार्यक्रम होंगे, इसमें बहुत सारे विदेशों के मंत्री भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं, हमारे अपने जो साथी मंत्री लोग भाग ले रहे हैं, सारे देश भर के हमारे बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स भाग ले रहे हैं, और इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोग जो है इंडस्ट्री के लोग, इसरो के लोग, DRDO के लोग, साइंस के और जितने भी आयाम हैं वो सब शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम सब के लिए इन सब के ऊपर जो बहुत खुशी की और संतोष की बात है कि हमारे इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल शाम को 4:30 बजे करने वाले हैं, और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो भी जब 25 तारीख को होगा, उस कार्यक्रम में भी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी उसमें शिरकत करेंगे। इसके बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, बहुत सारे मंत्री लोग, वो सब उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पिछले 5-6 साल में हम लोगों ने देखा है कि वैज्ञानिकों को बहुत प्रोत्साहित किया है, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन किया है। इनोवेशन का इकोसिस्टम भारत का दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावी इकोसिस्टम बन जाए, इसके लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसे मूवमेंट्स उन्होंने देश में खड़े किए हैं। और शायद आज इसीलिए जितने भी साइंस के डेवलपमेंट के, साइंस के प्रोग्रेस के जितने भी पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स हैं, उनमें अधिकांश इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स में भारत जो है वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी या फर्स्ट 10 पोजीशंस के अंदर आता है। प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड के एक प्रकार से कष्टदायक काल में भी पूरा देशवासियों का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। हम कैसे आत्मनिर्भर विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हो सकते हैं, उसका उदाहरण शायद कोविड की जो जंग है उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। कैसे वैज्ञानिकों ने, चाहे वो PPE किट्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो नई नई दवाओं की डिस्कवरी हो, चाहे रीपर्पसिंग हो, चाहे जो वायरस का आइसोलेशन हो, चाहे वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, और चाहे एक थोड़े समय में, छोटे समय के अंदर वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, इतने प्रकार के आयामों पर हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसी नाते प्रधानमंत्री जी ने जो वो कॉन्फिडेंस दिया आत्मनिर्भर भारत का, उसके कारण ये सब कुछ संभव हुआ। इसलिए जो इस बार का हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो थीम है वो भी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, क्योंकि हमारा हमेशा से भारत का ये सोच रहा है कि जो भी कुछ हम खोजते हैं, प्राप्त करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, वो खाली हमारे लिए नहीं है। पूरा एक विश्व जो है वो एक परिवार है, और उस परिवार की जो हमें सब प्रकार से चिंता करनी है वो हमारा सबका मिलके धर्म है। इसीलिए हमारा जो थीम है इस बार का साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर है। और आने वाले 4-5 दिन के लिए, जैसा अभी रंजना जी के द्वारा बताया गया है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं। इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़ एक साथ इसमें होंगी, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनके पास जो ताकत है वो हमें पता है कि हम जितनी मर्ज़ी मेहनत करेंगे, लेकिन उनकी ताकत के आगे हमारी जो सारी मेहनत है उसके जो भी कोई सुपरिणाम संभव है
वो सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी कलम में बहुत बड़ी ताकत है और आप अपनी कलम की ताकत से बात को कहाँ से कहाँ और कितने विस्तार से पहुँचा सकते हैं। ये हमने पिछले सालों के साइंस फेस्टिवल्स में देखा है। पिछले सालों के साइंस फेस्टिवल्स में तो सारे देश भर के जर्नलिस्ट को हम लोग उस स्थान पर लेकर जाते थे जहाँ साइंस फेस्टिवल होता था, लेकिन इस बार सभी लोगों को ऑनलाइन भी निमंत्रण है और जिस भी प्रकार से जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तरीके हैं उन सब का इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। अपने आप में ये हो सकता है कि ये 6 साइंस फेस्टिवल्स के बाद जब हम विश्लेषण करें तो हमें लगे कि शायद ये कोरोना काल का जो साइंस फेस्टिवल है ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था और भविष्य में हमारे लिए और ज़्यादा मात्रा में और बड़े पैमाने पर ऐसे फेस्टिवल्स करने की इससे हमें प्रेरणा मिले। तो बातें तो इसके बारे में बहुत हो सकती है, लेकिन आपको निश्चित रूप से जो इसके लिए ब्रोशर वगैरह बनाए गए हैं वो सर्कुलेट होंगे, उनको आप थोड़ा सा अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके माध्यम से देशवासियों को जा सकेंगी। मैं इस अवसर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को इस अवसर पर अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विशेष रूप से मैं याद करना चाहता हूं, क्योंकि जहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, तो साइंस को सेंटर स्टेज पर इंडियन पॉलिटिक्स के लेकर आने का काम जो था उसमें अटल जी ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया जब उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान किया। लेकिन उसको एक लंबी छलांग से और आगे बढ़ाने के काम में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ तक मुझे याद है कि पंजाब के अंदर जब साइंस कांग्रेस हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि ये खाली जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अकेले नहीं है, भी जुड़ना चाहिए और इसके साथ जय अनुसंधान भी जुड़ गया और उसी का परिणाम है कि वैज्ञानिकों को इतना उत्साह मिला है। वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी ने उनकी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्मरण कराया है और आज हमें बड़ी खुशी है कि हम हमारे वैज्ञानिकों की ऊर्जा और उनकी जो एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम 2022 में नया भारत भी देशवासियों को डिलीवर कर सकते हैं और 2030 तक जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं उनको समय से पहले अगर कोई पूरा करके दिखाएगा साइंस की और सब चीज़ों की मदद से, तो वो भारत करके दिखाएगा। तो आज के इस अवसर पर आप सबको निमंत्रण है, आपके माध्यम से सारे देशवासियों को निमंत्रण है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के कल के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम और उपराष्ट्रपति जी के जो समापन कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से निमंत्रण है और ख़ासकर निमंत्रण है देश के यंग बच्चों को कि आप विज्ञान की गहराई में डूबिए। इस समय भले ही कोविड काल में आप अपने स्कूल कॉलेज में ना जा पा रहे हो, लेकिन घर में ही बैठकर आप इतना बड़ा विज्ञान का दर्शन कर सकते हो, इतनी सारी लेबॉर्ट्रीज़ में जा सकते हो, इतने प्रकार के वक्तव्य सुन सकते हो, इतनी दुनिया भर की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो कि जो शायद आपको कभी एक साथ 2-3 दिनों के अंदर इतना मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत आपका सबका हृदय से आभार और इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि आप सब अगले 4 दिन कम से कम 25 दिसंबर तक हमारे साथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जुड़े रहेंगे। आपको सबको भगवान से प्रार्थना है कि कोविड काल में आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवारजनों के, आपके मित्रों की, आपके साथियों के स्वास्थ्य की रक्षा भी हो। आपको सबको क्रिसमस की बधाई है, आपको आने वाले नए साल की भी एडवांस में बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। साइंस को लेकर जो आपने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन
इस समय क्योंकि कोरोना वाला जो सिस्टम चल रहा है, May I just request you, because health ministry की तरफ से डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एवरी थर्सडे ऑन दिस सब्जेक्ट, बाकी इस फेस्टिवल के ऊपर जरा रिस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने क्वेश्चंस। या एक ही सवाल या जस्ट प्लीज जस्ट वेट। यस डॉक्टर साहब, ये जानकारी चाहिए थी कि पहली बात है कि वैक्सीन कब तक आएगी और जो यूके में नया स्ट्रेन आया है Yes. उसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती है? ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये सारे सवालों के जवाब देंगे। आज आपको जो भी कोई बात करनी है, अगर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपका स्वागत है। नंबर 11। Good morning, Prashant here from the PTI. Sir, I very well understand that you just mentioned that this press conference is for India International Science Festival. Sir, but it's a very rare Sorry, I am occasion. so sorry. Please don't divert the Sir, subject. it's a very rare occasion Focus that we on have Renu Science Swarup ma'am Festival. and the CSR DG as well as the health SNT minister. So the new virus, the new virus strain that we have, the CSIR as well as the DBT has been. Please, I think it's already understood. Your I think question. Just leave it now. okay. You see, whatever there is in the COVID, which needs any help from science, as I had said earlier, the scientific community has very ably risen to the occasion in the last 1 year, and I think they have been continuously striving and contributing to whatever needs of science are required for any aspect in our fight against COVID also. Last question, number 6. सर, ये ऐसा पैनिक फैल गया है कि जो ब्रिटेन में जो वायरस का नया स्ट्रेन आ गया, अब ये मांग की जा रही है, यहाँ तक मांग की जा रही है कि जो फ्लाइट्स हैं वो यूके से उसको बैन किया जाए। तो हमारे सरकार की क्या तैयारी है नए स्ट्रेन को लेकर और कितने डेडली है? सर हिंदी में प्लीज, सर हिंदी में। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। धन्यवाद सर। आई विल